Hello and welcome back to my channel. So today in this video we will discuss the statistical assistant exam which was conducted on 4th of April 2021 by HPSSC. So we will discuss all the questions except mathematical portion. So we'll start with question number 1. Cost which do not vary with production or sales level are called fixed cost. Option D is correct. Question number 2. Niche market means, so here the right answer is option C. It is a kind of specific market. It's a unique market, you can call it. Question number 3. Gestural communication is a non-verbal message. Question number 4. Procedures are details of activities for achieving business goals. So option D is correct here. Question number 5. Price of cycle is 299.50 is an example of. It's a tricky question, so you can comment in the comment box. Question number 6 is a mathematical question, so I'm not going to do it. Next question is a brand convey. So here the right answer is option D. A brand convey everything, attributes, values and culture. Option D is correct here. Next question, FICCI was founded in which year? So the right answer is option A, 1927. Next question, question number 9. It's also a tricky one, so please comment in the comment section for this question. Question number 10 is again mathematical one. Next question. Question number 11 is the owner of debenture is qualified for. So the here right answer is option A, fixed rate interest. Question number 12. The form of discount on issue of debenture is in the nature of. Option C, capital loss. Next question is question number 13. Tax on import can be treated as. So it's also a tricky one. So here the right answer is option B, foreign trade. You can also comment if I'm wrong. Next question is, when did the government remove the barriers for trade and investment in India? So here the right answer is 1991. The LPG model has come up. The right answer is option B, 1991, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया था 1991 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, when debit balance equal to the credit balance then the trial balance means the account balance are correct. Option A is correct here. Question number 16. Which of the following account with normal balance is shown at the debit side of the trial balance? So here the right answer is cash account. Option D is correct. Next question. In how many ways cost classification can be done? So option C is correct, many ways. What is tender? So tender is the estimation of a cost. Option B is correct. The word limited should appear after the name of. So here the right answer is A, partnership. जो लिमिटेड वर्ड आता है वो पार्टनरशिप में आता है. क्वेश्चन नंबर 20. डेफर्ड शेयर्स आर जनरली इशूड टू प्रोमोटर्स. ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. व्हाट इज़ द पर्सन नोन एज हु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉई इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी करेक्ट. Question number 22. What kind of acceptance is known as when the bill is accepted without any condition? So it's a general acceptance. Option D is correct here. Question number 23. Oil refinery and sugar mills are classified under which industries? So these are the secondary industries. Option B is correct. Question number 24. Name the process that converts a message into communication symbols. Option D is correct, encoding. Question number 25. Again mathematical question. Question number 26. Which of the following is the periodic cost? So here the right answer is overhead cost is the periodic cost. Next question, a beta equals to 1.2 indicates that the risk is option A, above market level. Option A is correct. When was the Nifty established? So Nifty was established in 1996. Option C is correct. Next, good return to a creditor after challan but before will we need to pass rejection out or in? There is option C or D. Please comment in the comment section. यहाँ पे C या D दोनों में से एक सही है. Next question, with you all the way is the slogan of SBI. Option A is correct. Question number 31. A non-traditional, low-cost, flexible, highly effective marketing is known as guerrilla marketing. Option B is correct here. 31 का B सही हो जाएगा. Next question है 32. We are leaving it. Question number 33. We are leaving again. Next question. Dow theory was propounded by Charles H. Dow in the year 1901.
ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज depreciation. So the option C will be correct here. Next question 36, how many types of preference shares are? So the right answer is option A, 8 types. नेक्स्ट क्वेश्चन 37 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसको एक बार कमेंट करके बता दें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोविजन रिगार्डिंग TDS ऑन सैलरीज आर कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सो यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन 192, ऑप्शन सी करेक्ट। कोस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B ऑफ कंपनी एक्ट इज कंपल्सरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। Question number 41, the maximum investment in plant and machinery in case of medium enterprises. So the right answer is option D, 50 crores. Next question है 42, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट और लॉन्ग टर्म लोन इज, सो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन ऑफ कैश, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन एडजस्टेड P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट विल बी डेबिटेड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, इन्वेस्टमेंट इज़ अ रियल अकाउंट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 48, while calculating purchase price the following value of asset are considered at, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्केट वैल्यू, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 49 का है, when purchasing company bears the liquidation expense it will debit the expense to, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ए या सी में से एक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए हो जाएगा, वेंडर्स कंपनी अकाउंट। अगर इसमें कुछ सही है तो आप कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन विच वैल्यू ऑफ एसेट इज़ टू बी कंसीडर्ड, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा रीवैल्यूड प्राइस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एक्सटर्नली, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। laissez-faire policies adopted in capital economic system, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिट प्लानिंग, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AAS 8। क्वेश्चन नंबर 55, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर इनकम इज़ क्लब्ड टू, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ मदर्स एंड फादर्स इनकम, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ प्री कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट वुड बी, सो यहाँ तो राइट आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन, वी आर लिविंग इट। क्वेश्चन नंबर 59, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय, सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मार्केट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। सो अभी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 93, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एरर इज़ पॉजिटिव व्हेन, सो हियर द राइट आंसर इज़ व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मीडियम मोड एंड कोइंसाइड, सो सिमेट्रिकल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Which hypothesis is also known as statistical hypothesis, or this null hypothesis, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ची स्क्वायर टेस्ट 97 का। 98 का जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज ऑफ को रिलेशन। सो यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसका आप कमेंट करके आंसर बता दें। सैम्पलिंग एरर इज़ एस्टिमेटेड इन कंप्लीट इनमरेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 100 का है द लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लॉट शुड इंटरसेक्ट एट, यहाँ पे आ जाएगा मीडियन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिफिन्स गुड। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉल इवॉल्व बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ एन इम्प्लिसेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमेंट फॉर मशीन, ऑप्शन डी करेक्ट। द महलनबोलिस मॉडल वॉज डेवलप्ड फॉर विच 5-year प्लान, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, सो लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, सो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन ये एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 109 a firm is in equilibrium when its marginal costs equal to the marginal revenue, option A is correct here। collective consumption means, so यहाँ पे right answer none of these आ जाएगा, ऑप्शन डी आएगा 110 का। 111 when marginal utility is 0 the total utility is maximum, option C is correct। the break even point is where टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 112 का। 113 का है द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलिस्ट इज़, सो यहाँ पे आएगा लेस देन प्राइस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेलर मार्केट डिनोट्स अ सिचुएशन वेयर डिमांड एग्जीड्स सप्लाई, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा 114 का। 115 प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर क्विकली एंड ईजिली मार्केटेबल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 116 का। 117 द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP इज इक्वल टू कैपिटल डेप्रीशिएशन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट ऑन नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय RBI, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 119 which is not the main objective of the fiscal policy in India, so here the right answer is option A to increase liquidity in the economy। 120 when there is an official change in the exchange rate of the domestic currency then it is called revaluation, option C is correct here। question number 121 geographical location of HP is, so the right answer is option A, 121 का A सही हो जाएगा। question number 122 sex ratio of HP as per census 2011 is, so it's 972, option D correct। which is the largest artificial lake of HP, so इसका none of these आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी जो आर्टिफिशियल लेक नहीं है जो कि लार्जेस्ट है। गौरी देवी का टिब्बा, सो ये है चंबा में, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भूरन सब डिवीज़न जो है वो आएगा आपका हमीरपुर में, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका 125 का डी। क्वेश्चन नंबर 126 पुलाइचेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, सो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, सो डुंगरी फेयर अपने कुल्लू मनाली में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द यंगेस्ट गर्ल ऑफ HP टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज डिक्की डोल्मा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question, which is the longest serving chief minister of HP, so very easy, it's Veerbhadra Singh, option C is correct। Next question, in the battle of Nirti Shahpur 1786 AD Raja Sansar Chand II of Kangra defeated which of the following, so right answer option C Raj Singh। Lord Mayo visited Shimla in which year, so आए थे B में 1871 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, सो 1946, राइट आंसर ऑप्शन डी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, ऑप्शन ए करेक्ट हियर।
Next, Nugal hydroelectric project is constructed on which river of HP? So Vyas is the right answer, option C. Question number 135. The Temperate Forest Research Institute is located at which place of HP? So the right answer is option A, Shimla. Next question, who is the author of the recently published book Reporting India? Prem Prakash इसके author है, option B. What was the rank of India in the Doing Business Report 2020? 63rd. Option A is correct. Communication satellite CMS-01 launched recently at which organization? ISRO के द्वारा लॉन्च किया. Option B is correct here. Which country observed Martyr Intellectuals Day on December 14? So बांग्लादेश सेलिब्रेट करता है. Option D is correct. Pleasure शोरो तो राइट का हो जाएगा, रॉन्ग. Option A will correct here. तो यहाँ पे 141 का आप इसको सॉल्व कर लें और 142 का सॉल्व करके आई थिंक इसका ऑप्शन ए विल करेक्ट. 143 का डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लें. नेक्स्ट 144, विच इज़ द उपवेदा ऑफ समावेदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंधर्व वेदा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस? सो ऑप्शन ए जो इसका रॉक एडिक्ट 1 है उसमें दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोविंदा बुक वॉज रिटन बाय? सो ये रिटन की गई है भाई जयदेवा के द्वारा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच मुगल एम्पर पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ? चरम सीमा पे जहांगीर के टाइम में पहुंची. तो ऑप्शन बी. मोपला रेबेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर? तो मोपला रेबेलियन 1921 AD में हुआ था भाई. 149 जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 2 ग्रुप्स लाहौर विच सेशन? तो ये हो गया था सूरत वाले सेशन में 1907 में. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है पन्नाला लाल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो फ्लूट बजाते थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम? तो जुपिटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट अपना रोटेट करते हैं सोलर सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है बारो मिस्ट्रल सिरकू आर लोकल विंड्स? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ग्रासलैंड ऑफ यूरेशियन रीजन इज़ कॉल्ड स्टेपे. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सो गुजरात आ जाएगा, ऑप्शन डी. विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा है तो पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी आ जाएगी, पूरी इंडिया की नहीं पूछे, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. विच इज़ द प्लांटेशन क्रॉप? सो टी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन? सो ऑप्शन सी आ जाएगा, आर्टिकल 23-24. नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो स्पीकर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी. विच इज़ महारत्ना स्टेटस कंपनी? सो ये महारत्ना वाली कंपनी सारी हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. विच इज़ यूज्ड एज ए शेविंग मिरर? कनकेव मिरर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. विच गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ? ऑप्शन ए वाटर गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ. ऑप्शन ए करेक्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट आंसर. मीजल्स इज़ कॉज्ड बाय वायरस. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. एंटोनिम्स ऑफ सॉर्डिड इज़ जनरस. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा रिगार्ड फॉर अदर्स एज प्रिंसिपली ऑफ एक्शंस इज. सो इसका आ जाएगा इसका क्या अल्ट्रूइज्म. ऑप्शन डी का इज करेक्ट. आई सो डैश ऑफ वॉल्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट? आई सो पैक ऑफ वॉल्स. ऑप्शन डी आ जाएगा 165 का. मीनिंग ऑफ एडियम द बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन इज़? सो इसका आया जाएगा बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेंटली. ऑप्शन सी 166 का. नेक्स्ट है ग्रामत में समास है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा तत्पुरुष. नेता का पर्यायवाची शब्द है अगुआ. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है अधीन होना. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर. 170 जो लेने की चाह रखता हो उसका राइट आंसर है लिप्सू. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. So with this we have ended this session and I hope you found this video informative. and guys, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने आंसर दिए हैं वो गलत हैं तो आप कमेंट करके उसको मेंशन कर सकते हैं. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी सो दैट कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा फ़ायदा पहुँच जाए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर.